पहले ही काम करो, इसको हटाओ। हाँ, अब हम लोग इसको पुश कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू पुल इट आउट। देखो ब्लैडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, एन ब्लॉक डिसेक्शन, दिस इज कॉल्ड एन ब्लॉक डिसेक्शन। सो वॉट एवर इज हेयर, दिस इज ऑल अ कंटेंट ऑफ ट्रू पेल्विस, ठीक है, लेसर पेल्विस और द ट्रू पेल्विस, ये पूरा कंटेंट है। दिस विल हैव द यूरिनरी ब्लैडर, द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, वजाइना एंड द एनल कैनाल, द रेक्टम, एवरीथिंग हियर। ये हम लोगों ने एन ब्लॉक डिसेक्शन किया है एंड दिस इज द जेनाइटिलिया, ठीक है, एंड हियर इट इज द एनल साइड एंड ऑल दिस यू आर सीइंग इज द पेरिनियम, फीमेल पेरिनियम, ठीक। तो ये एन ब्लॉक डिसेक्शन करके हम लोगों ने निकाला है एंड यहाँ पे अब तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द बर्थ कैनाल, ठीक, यानी पेल्विक आउटलेट। यू हैव इस प्यूबिक सिम्फाइसिस हियर, these are the ischiopubic ramus both the sides, and then पीछे की तरफ हम लोग ने अभी लोअर लिम्ब नहीं किया है, there will be क्या sacrotuberous ligament and there will be coccyx behind, so this is called the birth canal। अच्छा, और यहाँ पे आर्क्वेट लिगामेंट होता है, इंफ्राप्यूबिक आर्क्वेट लिगामेंट होता है, and these glistening tendons you are seeing, these are adductor longus, also called horse-riders muscle। In people who are professional horse riders, इसमें हमको सीसमॉइड बोन भी मिल जाती है कभी। So what other muscles arise from in front of the body of pubis? There are two muscles arising here, rectus abdominis and pyramidalis। तो rectus abdominis, pyramidalis, they also arise from here, क्योंकि rectus sheath में चली जाती है, और pyramidalis नीचे निकलती है, linea alba पे अटैच होती है, तो strengthen the linea alba। Then below to that adductor longus का origin होता है, ठीक। और थोड़ा सा अगर हम लेटरल जाएंगे इस्चियोपुबिक पे, जहाँ पे तुम्हें अडक्टर मैग्नस है, ग्रिसालिस है, अडक्टर ब्रीविस है, all those muscles of the adductor compartment of thigh, they take origin from the pubis, outer surface. Okay, and what arises from here? This, pubic crest which continues along the inlet of the pelvis. There is a flattened triangular area here that is called pectineal surface. So which muscle arises from that? Pectineus. Pectineus muscle arises from the pectineal surface of the pubis. This joint, what type of joint is this? This is the secondary cartilaginous joint, having a fibrocartilaginous disc here in between. हम अब इसमें सेपरेट करेंगे। ये तो अभी हमारे पास इन ब्लॉक डिसेक्शन है पेरिनियम का एंड द कंटेंट्स ऑफ द ट्रू पेल्विस, दिस वी नीड टू डिसेक्ट आउट। लेकिन अभी देखो, जब चूंकि हाथ में उठाया है, ये कंटेंट्स ऑफ द पेल्विस हमने खोले तो यहाँ पे एक स्पेस दिख रही है, राइट। ये जो स्पेस है, दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी प्रॉपर। So this is a fold of peritoneum called pelvic portion of the peritoneum, which covers the viscera here, the urinary bladder, uterus and the rectum. Now look here, this bulging you are seeing is the roof of the bladder, the superior surface of the bladder. Then here you are seeing is in between is the fundus of the uterus, which continues both the side laterally in the form of fallopian tubes. These are fallopian tubes buried in the broad ligament, and these are the ovaries. These are the ovaries. यहाँ की ओवरी ये है, कैन यू सी दिस, almond shaped चीज होती है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, दिस इज ओवरीज बोथ दी साइड्स। ओके, देन पीछे की तरफ दिस इज द रेक्टम विच हैज बीन कट आउट, ये नीचे एनल कैनाल गया। सो हियर यू सीइंग इज अ स्पेस, ये स्पेस क्या है? This actually is a dipping fold of peritoneum, a recess of peritoneum between the uterus and the rectum. So this is the dependent sac of the peritoneum between the uterus and the rectum. So this is called the recto-uterine pouch of Douglas. So in erect posture, whatever little amount of fluid is there in the body, that collects here. तो
इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी है इन केस ऑफ लाइक कार्सिनोमा ओवरी और एंडोमेट्रियोसिस और एनी PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एनीथिंग लाइक दैट। तो सेल्यूलर डेब्रिस, इन्फेक्शन होगा तो पस वगैरह, दिस विल कम एंड सेटल डाउन हियर एंड दिस कैन बी ब्रॉट आउट बाय पंक्चरिंग द पोस्टीरियर अपर वॉल ऑफ द वजाइना, because this pouch of Douglas descends down in posterior relation to the upper 1/3 of the vagina. ओके और ये सब कुछ जो व्हाइट कलर का है ये है पेरिटोनियम कवरिंग द पेल्विक विसरा, ठीक है, तो पेल्विक पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम है। अब हम इसको बाकी डिटेल आराम से करेंगे, इसमें चीजों को थोड़ा सा पेरिनियम देख लेते हैं। तो ये फीमेल पेरिनियम है, राइट, एंड यहाँ पे डिटेल में अगर वैसे तो तुम लोगों को पढ़ाया गया है लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, फोर्सेप है, कैसे स्प्लिट करो। यहाँ पे यू फाइंड इज द क्लाइटोरिस, ठीक है, अप साइड यहाँ पे, ठीक, एंड देन क्लाइटोरिस, beneath to that you find is an opening for the urethra, ठीक, down below you'll be having a vaginal opening, ठीक है। The space here where the two openings are opening, vaginal opening and the urethral opening, that space is called the vestibule, है ना, कॉमन स्पेस है जहाँ पे दोनों यूरोजेनाइटल ओपनिंग्स आ रही हैं। देन ऑन द साइड्स यू हैव इज द क्या कहते हैं वेस्टिबुलो बल्बर, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। यू नो वजाइना की इधर जब पोस्टीरियर व्हेन द टू लेबिया जॉइन पोस्टीरियरली, ये वही पॉइंट है जहाँ पे हम इंसिजन लगाते हैं ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेटेड लेबर, क्योंकि हमें इस बर्थ कैनाल को वाइडन करने के लिए एपिजियोटमी इंसिजन लगाते। मिड लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे बिलो यू नो पहले देखो यहाँ पे ये एनल ओपनिंग है, ठीक है, दिस इज द एनल ओपनिंग, ये दिख रही है। तो एनल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग के बीच में जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एनल ओपनिंग यहाँ पे देयर इज अ फाइब्रोमस्कुलर नोड्यूल, पेरिनियल बॉडी, 10 मसल्स कन्वर्ज है, वो हम बताएंगे बाद में। तो क्या होता है अगर हम वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं तो पेरिनियल बॉडी कट सकती है, थोड़ा सा ऑब्लिक इंसिजन लगाएंगे जे शेपेड, सो दैट इट डजंट टीयर्स फर्दर अपार्ट। जे शेपेड में थोड़ा सा ये बेटर रहता है। तो लेटरल इंसिजन लगाएंगे एंड दैट विल बी कटिंग थ्रू व्हिच मसल हियर, bulbospongiosus and transverse perineal muscle, and also sphincter uretrovaginalis, तो वो मसल कट सकती है। अदरवाइज अगर हम और डीप, क्योंकि डीप तो लगाना ही पड़ेगा, खाली सुपरफिशियल कट लगाने से तो डिलीवरी हो नहीं जाएगी, तो डीपर कट लगाएंगे तो एक मसल आती है प्यूबिस से ऐसे राउंड करके फिर वापस जाती है यू शेप में लूप में, प्यूबोवजाइनालिस, ठीक है, तो प्यूबोवजाइनालिस भी कट सकती है। एनीवेज, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये एनल ओपनिंग है, ठीक, एनल ओपनिंग के सराउंडिंग में जो स्किन है दैट इज कोरुगेटेड। द रीजन वॉज, पहले बताया था मैंने, there was fibroelastic septa descending down from the conjoined longitudinal muscle coat of the anal canal, वो इसको पुल अप करते हैं तो कोरुगेशंस रहते हैं। देन पोस्टीरियरली द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एनल ओरिफाइस से टिप ऑफ द कॉक्सिक्स तक डीप इनसाइड इज एनोकॉक्सियल लिगामेंट, जो कि एनल ओपनिंग को वर्टिकल स्टेबिलिटी में पीछे की तरफ बाइंड करके रखता है, ठीक। इस एरिया की क्यूटेनियस नर्व सप्लाई इज बाय द पेरिनियल ब्रांच फ्रॉम S4। ये जो नेटिस है जहाँ पे ये थंब रखे हुए हैं आदित्य, ये दोनों का साइड यहाँ पे स्किन की सप्लाई किससे है, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व फ्रॉम S to S3, ठीक। देन ऑन द साइड्स हियर
यहाँ पे दोनों साइड पे, जहाँ पे ग्रोइन से, जहाँ पे थाई से जुड़ रहा है, वहां पे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. Remember that it is a cutaneous nerve having the largest area of distribution, largest cutaneous area being innervated by this nerve. Then this portion here in front of the anal orifice is by posterior scrotal in males and posterior labial nerves in females. Posterior labial nerves branches from pudendal nerve. So in short, you can say all this area is having a dermatome of S234. S234 basically is the dermatome here. तो cutaneous ही बता दिया. अब क्या है कि if you press upon this is very much fatty here, both the sides. ये fatty क्यों है? इसके नीचे पूरा abundant amount of fat है, and that space on either side of the anal canal is called ischoanal fossa. देन क्या होता है इश्योएनल फोसा में और इसमें अगर हम स्किन हटाएंगे तो एक एनल फाशा होता है बीच में, which actually separating the space on the two sides of the anal canal. Deeper space will be ischoanal fossa and the superficial subcutaneous space is called perianal space. पेरीएनल स्पेस और इश्योएनल फोसा के डिफरेंस बताए थे इन केस ऑफ इन्फेक्शन और एब्सेसिस ऑफ बॉयल्स. इस रीजन में इन्फेक्शन बॉयल्स जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं, है ना, और कहा जाता है कि क्योंकि कभी कभार पाइलोनिडल होते हैं, हेयर फॉलिकल्स एसोसिएट होते हैं, तो ये अंदर की तरफ बस्ट कर सकते हैं. ठीक, तो ये पेनफुल होते हैं मोर बिकॉज दे आर टाइट पैक्ड अप सबक्यूटेनियस लिगामेंट्स, है ना, because the skin ligaments binding which are packing the subcutaneous area into small tight compartments with fat loculi. तो इस वजह से इसमें पेन ज्यादा होता है क्योंकि फाइब्रस टिश्यू बहुत है. लेकिन उसके और डीप चले आएंगे इश्योएनल फोसा में. इश्योएनल फोसा में देयर इज thinned out, loose and also not regular. The fat there is divided into larger compartments. So the fat in the ischoanal fossa is loose. तो उसमें एब्सेस जो है वो बढ़ता रहता है, पेन कम होता है, पता नहीं चलता है पेन, तो वो फिर रप्चर कर सकता है इन दी फॉर्म ऑफ फिस्टुला. फिस्टुला इन एनो हो सकता है एनल कैनाल में खुले या ऑन द पेरिनियम, फिस्टुला एक्सटर्नो या फिस्टुला इन एनो, सबक्यूटेनियसली भी खुल सकता है. एनीवेज जो हमने मेन चीजें थी यहाँ पे बता दी हैं पेरिनियम से रिलेटेड. बाय द वे जेनाइटिलिया का क्यूटेनियस भी कंप्लीट कर लेते हैं. तो जेनाइटिलिया इफ यू टॉक अबाउट द लोअर 2/3 ऑफ द लेबियास is supplied by posterior labial nerves. ठीक है, ये posterior scrotal nerves in males. Upper 1/3 is supplied by ilioinguinal और genitofemoral nerve L1 and and skin over the clitoris is supplied by dorsal nerve of clitoris or the dorsal nerve of penis in males. That is the terminal continuation of the पुडेंडल नर्व. ठीक, तो वो हो जाएगी. व्हाट अबाउट द इनसाइड हेयर? अगर कोई पूछे तो म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द यूरिथ्रा इज सप्लाइड बाय पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल. पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व इनोवेट्स द म्यूकोजा ऑफ द यूरिथ्रा. ठीक, तो इतनी काफी सारी चीजें मैंने बता दी हैं. लगी हुई बात है कि यूरिथ्रा यहाँ पे जो है इसमें हम सब चीज तो नहीं दिखा सकते अभी. क्या है कि यूरिथ्रा इज 4 सेंटीमीटर इन फीमेल्स. सो फीमेल्स में जो है, इसको थोड़ा हाथ लग दिया, इसमें क्या है कि यूरिथ्रा यानी कि कैथेटराइजेशन इन फीमेल्स इज मच इजी. 4 सेंटीमीटर का है. ओनली हिंड्रेंस इज दैट ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर. वो क्रॉस करना है, इट विल रीच इनटू द ब्लैडर. मेल्स में ये काफी लंबा रास्ता था. हाउ मच लेंथ? 18 to 20 सेंटीमीटर है. तो उसमें कई सारे डिफरेंट उसके क्रॉस सेक्शंस होते हैं यूरिथ्रा के. एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरिथ्रल प्रोस्टेटिक पोर्शन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन. मेम्ब्रेनस इज द नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ द मेल यूरिथ्रा एक्सेप्ट द टर्मिनल. अगर कोई पूछे व्हाट इज द नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ द मेल यूरिथ्रा, तो इट्स द ओरिफाइस. टर्मिनल ओरिफाइस इज द स्मॉलेस्ट नैरोएस्ट पोर्शन.
उसके बाद अंदर का मेम्ब्रेनस पोर्शन है। पेनाइल पार्ट काफी डाइल्यूटेड होता है। ठीक, तो काफी चीजें हमने बता दी हैं। दिस यू आर सीइंग इज द पेल्विक कैविटी प्रॉपर, ट्रू पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक इनलेट था, ठीक, ये pubic symphysis, pubic crest, pubic tubercle, pectineal line, arcuate line, and ella of sacrum, and then you have the sacral promontory. इसके बाद true pelvic cavity। ठीक, तो अब इसमें तुम्हें मैंने बताया था ये लंबर स्पाइन है, और लंबर स्पाइन एकदम से डिप करती है। देखो ना यहाँ पे स्लोप जा रही है, एकदम से डिप कर रही। सो यहाँ पे S1 और L5 का लोअर बॉर्डर जुड़ रहा है, L5 लोअर बॉर्डर, S1 अपर बॉर्डर। तो ये एंगल बनता है, सेक्रो वर्टिब्रल एंगल और लंबोसेक्रल एंगल। फीमेल में है तो और ज्यादा कर्व्ड होगा, याद रखें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो स्पेस है, नाउ लुक हियर, दिस स्पेस आई एम टेलिंग यू द बाउंड्रीज इनसाइड यू फाइंड द लेटरल वॉल ऑफ दिस स्पेस, pelvic cavity, the lateral wall, both the sides. It is formed by this muscle here inside, obturator internus. ठीक, obturator internus takes origin from the inner surface of the obturator membrane, from the margins of the obturator foramen, and also from the inner surface of the acetabulum. And acetabulum is formed by ilium and pubis. That means we can say that obturator internus takes origin from all the three bones, ilium, ischium and pubis, from the inner surface. So that muscle forms the lateral wall of the true pelvis. It will be covered by obturator fascia. That obturator fascia in between will be crossed by a tendinous arcuate ligament, and that will provide attachment to the lateral fibers of levator ani. Then posterolaterally, you know, you're seeing is sacrum here. This you are seeing is the sacrum, right? So from the middle three sacral pieces, S2, S3 and S4, there will be E-shaped origin of a muscle called piriformis muscle. This piriformis muscle, you know, it moves lateral and forward and will emerge out through the greater sciatic foramen. It gets inserted onto the tip of the greater trochanter of the femur. Right, so this muscle is also said to be the key muscle of the gluteal region. So it helps you to learn the structures emerging into the gluteal region by passing from the greater sciatic foramen above the piriformis, below the piriformis, that way. It is a lateral rotator. Action wise, if you ask, piriformis is a lateral rotator. ठीक, nerve supply is from the sacral plexus. सेक्रल प्लेक्सस से डायरेक्ट ब्रांचेस हैं। पायरिफॉर्मिस पोस्टरोलेटरल वॉल बना रही है, एंट्रोलेटरल वॉल ऑब्टुरेटर है। अब ऑब्टुरेटर इंटरनस के बीच में से दोज वर द फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई, रिदम ऑक्सीजेस, इलियम ऑक्सीजेस, इश्यूम ऑक्सीजेस कहते हैं। तो वो बन जाता है लेवेटर एनाई, फाइबर्स डिपॉजिट ऑन बोथ द साइड इन बिटवीन। उसके अंदर फिर तीन ओपनिंग होंगी फीमेल में, यू नो, यूरिथ्रल, वजाइनल, एनल।